everyone. In the last class, we have discussed about the electric power. But today we will discuss about the magnetic effect of current. In this video, we will see what is the magnetic effect according to the current. So let's start our topic with magnetic effect of current. First of all, before knowing about magnetic effect, it is necessary to know what is the magnet. What is a magnet? Magnet is nothing but this type of a structure. This magnet has two parts. This magnet has two parts, or you can say two poles. This is the north pole. N means this is the north pole and this is the south pole. This is a magnet. Magnet has two poles, north pole and south pole. For knowing the magnetic effect, we will consider about a compass. That is our compass. This compass has a needle. This compass has a needle and this point is red. This point is red. This red point is called north. This needle has a small magnet. Nothing too much, but a small magnet. And this red part is called north part and another part is called south part. So this is a compass. So look at here, what will be the effect? Magnet effect. This is the north part of this magnet and this is the north part of this compass. So this is the north part and this also be north part. Same part, same poles become reflective. These two same poles become reflective. But this and this become reflective. And north pole and south pole. This is different pole. And ये क्या करेंगे हमारे यहाँ पर? Attract. Means क्या होगा? अट्रैक्शन की वजह से ये साउथ पोल घूमकर इस नॉर्थ पोल के पास आने की कोशिश करेगा एंड ये रिफ्लेक्ट होकर उधर मूव करने की कोशिश करेगा. तो समझ रहे हैं आप इसका ग्राफ, इसका जो कंपास है मुझे कैसे मिलने वाला है? इसका कंपास मुझे कुछ इस तरीके से मिलने वाला है. ये साउथ पोल कहाँ मूव करता रहेगा? इधर की तरफ मूव करता रहेगा और ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ मूव करने लग जाएगा. मीन्स ये साउथ पोल यहाँ अट्रैक्ट होता जाएगा. इस तरीके से हमारे क्या चलेगी? इस वाली नीडल की डायरेक्शन चलेगी. लुक एट हियर अदर साइड. दिस इज आवर साउथ पोल. टेक हियर कंपास आल्सो. दिस कंपास contain needle. This is the south part and this is the north part. So north part and south part attract each other because of the different poles. Attract. This south part and south part become repel because of the same poles. So what will be the figure here? Your compass is attractive, means deflection. सेम नॉर्थ पोल इधर की तरफ जाएगा, साउथ पोल क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होकर इससे दूर जाने की कोशिश करेगा. तो नॉर्थ पोल तो इसके पास आने की कोशिश करेगा. ये देखिए मेरा नॉर्थ पोल क्या कर रहा है? इसके पास आने की कोशिश कर रहा है, जबकि मेरा साउथ पोल है वो क्या करेगा? सो लुक एट हियर. मेरा नॉर्थ पोल क्या करेगा? इससे अट्रैक्ट होकर इसके पास आने की कोशिश करेगा और साउथ पोल क्या करेगा? इससे दूर जाने की कोशिश करेगा. तो मेरे को जो हमारा नीडल है वो कैसे मिलेगी? मुझे इस तरीके से मिलेगी. तो कहने का मतलब डिफ्लेक्शन अकर होता है जब हमारे कुछ मैग्नेट फील होता है, मैग्नेट इफेक्ट होता है. तो देखिए इस तरीके से हमें डिफ्लेक्शन मिलता है. क्यों मिलता है? इस अट्रैक्शन और इस रिपल्शन की वजह से हमें क्या मिलता है? मैग्नेटिक नीडल में क्या मिलता है? डिफ्लेक्शन अकर होता है. इन द नेक्स्ट we will see about the magnetic effect. In 1820 your scientist Hans Christian Ørsted
In 1820, scientist Hans Christian Ørsted discovered the phenomena about that needle is deflected. Needle of the compass is deflected when a electric current passing through a metallic wire. कहने का मीन्स मेटेलिक वायर से जैसे ही करंट पास करता है उस हमारी कंपास का जो निडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। माना कि कोई सर्किट है, उस सर्किट में मैं करंट पास करा रही हूँ, करंट पास कराने से क्या होगा, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, उसका जो निडल है वो भी डिफ्लेक्ट करेगी। So in 1820, Hans Christian Ørsted given this phenomena about that electricity and magnetic effect. You can say electric effect and magnetic effect both are the same phenomena. So the next, he was discovered that a circuit, you take one battery, key and a resistance. This is a variable resistance, and he connected like this structure. Okay, there is a compass. Firstly, this compass is here. This is the north pole and this is the south pole. This is the battery plus minus. This is the key. What he discovered that in the circuit, if there is no flow of current, if there is no flow of current, देखिए यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, then there is no deflection occur in this compass. What is meaning there? Meaning there is, if there is no current in the circuit, there our compass will not be affected. This will be same. देखिए सेम रह रहा है नॉर्थ पोल एंड सेम रह रहा है हमारा साउथ पोल जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए अब इस सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रही है, हमारी करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, बैटरी के प्लस टर्मिनल से निकलकर ये कहाँ जा रही है, हमारे बैटरी के माइनस टर्मिनल की ओर जा रही है, तो देखिए क्या इफेक्ट होने वाला है, ये भी हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। कैसे डिफ्लेक्ट होगा, देखिए करंट में किधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, तो ये कंपास भी क्या करने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से मूव करने लग जाएगा। ये जो सीधा था हमारा वैसे क्या करने लग जाएगा, थोड़ा सा ये मूव करने लग जाएगा और काम इधर की तरफ से जाने की कोशिश करेगा। व्हाट इज रिजल्ट? रिजल्ट इज दैट यदि हमारे सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहा है तभी हमें क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। और ये डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होगी वो हमारे किस पर डिपेंड करेगी, करंट के अकॉर्डिंग चलती रहेगी। जिस तरीके से हमारा करंट फ्लो करेगा उसी तरीके से हमारा क्या करेगा, ये हमारी निडल डिफ्लेक्ट करती रहेगी। देयर इज वन पॉइंट आल्सो, if I'm increasing the current, जैसे मैं करंट बढ़ाती जाऊंगी क्या डिफ्लेक्शन सेम होगा या बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। जैसे मेरे सर्किट में करंट इंक्रीज की मेरा क्या डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लग जाएगा। मींस इफ करंट इंक्रीजेज then deflection also increases. Our next topic is direction of magnetic field. How we will find out the direction of the magnetic field? There are the two convenient way to find out the direction of the magnetic field. What is the two convenient way? First is the right hand corkscrew rule, and second is the right thumb rule. First of all, we will understand about the right hand corkscrew rule. We will understand this rule with example, homemade example. Like this is a screw. This is my screw. If I am connecting the screw, then देखिए मैं इस तरीके से घुमाऊंगी, मेरी डायरेक्शन देखिए इस राइट साइड की तरफ मैं घुमाऊंगी। जब भी मैं स्क्रू को कसती हूँ, मैं किस तरफ घुमाऊंगी, इसे राइट साइड में घुमाऊंगी। तो ये मेरा क्या है, इस स्क्रू का मेन पॉइंट जो मेरा अंदर जाता जा रहा है। मींस कहने का मतलब अगर मेरी करंट की डायरेक्शन ये वाली है, अगर मेरी करंट की डायरेक्शन ये वाली है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जिस डायरेक्शन में मैं स्क्रू को घुमा रही हूँ। कहने का मतलब
अगर मेरी करंट की डायरेक्शन ये वाली है तो मेरा जो जिस घुमा रही हूं मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या होगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिस डायरेक्शन में मैं इसे घुमा रही हूं। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द राइट हैंड कॉर्पस्कुलर रूल। मींस अगर मेरी ये मैग्नेट, ये मेरी करंट है तो इसे मैं घुमा रही हूं, घुमाने वाली डायरेक्शन मेरी क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। इन द सेकंड पॉइंट, राइट हैंड थंब रूल। What is in the right hand thumb rule? This is my right hand. Look at here. My thumb is going down. I'm assuming this thumb is the current direction. माना कि मेरी करंट क्या कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, इस थंब की जो फिंगर्स है जो मेरी जिस मुड़ रही है, ये मेरी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मेरी करंट इस थंब के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत इजी है ये दोनों रूल, राइट हैंड कॉर्पस्कुलर रूल एंड राइट थंब रूल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस दैट करंट फ्लोइंग थ्रू एनी मेटालिक कंडक्टर, a magnetic field produced around there. If so means conductor become like a magnet, conductor, or you can say conductor behave like a magnet. If we brought needle compass, if we brought needle compass nearest to this conductor, then conductor shows, this compass shows deflection. This compass is a small magnet but it shows deflection. So हमने देखा था फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या देखा था कि जो हमारा मैग्नेट था उससे जो हमारा नॉर्थ पोल था वो क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था नॉर्थ से, और साउथ पोल क्या कर रहा था हमारा, वो भी कर रहा था। तो कुछ मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी हमारी नॉर्थ पोल से कुछ मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी, तभी तो कुछ डिफ्लेक्ट होगा, तभी तो कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, जो कि क्या होती है, इमेजिनरी, हमें वो दिखाई नहीं देती है, वो इमेजिनरी, हम उसे कल्पना कर सकते हैं, हम उसे इमेज कर सकते हैं अपने माइंड में कि हाँ कुछ ऐसी मैग्नेटिक लाइंस निकलती होगी। तो देखिए, दिस इज आवर मैग्नेट, दिस इज आवर साउथ पोल एंड दिस इज आवर नॉर्थ पोल। हमेशा आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से निकलकर कहाँ जाती है, आपके साउथ पोल की तरफ जा रही है, लाइक दिस। यू कैन राइट लाइक दिस, this is the magnetic field lines. Magnetic field lines goes always from north pole to south pole, like this. So north poles में क्या करती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ पोल से साउथ पोल के अंदर क्या करती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है। तो दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेट के पास हमारी जो भी फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और जो फील्ड लाइन दूर होगी मैग्नेट से वो क्या होगी, थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग तो होंगी बट कम होगी। सो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा फील्ड लाइन क्या होगा, बहुत ही मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही हायर होगा, और यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे लोअर होता चला जाएगा। तो ये हमारी क्या मिलती है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है जो कि हमारे नॉर्थ पोल से निकलकर कहाँ जा रही है, साउथ पोल की तरफ जा रही है। ऐसे क्वेश्चन बनता है माइंड में कि नॉर्थ पोल से क्यों निकलती है और साउथ पोल की ओर क्यों जाती है। बिहाइंड रीजन इज दैट आवर नीडल कंपास नॉर्थ पोल मूव इनसाइड अकॉर्डिंग टू द दिस नॉर्थ पोल। जो हमारा क्या करता है, जो कंपास का नीडल होता है ना, वो इसके अकॉर्डिंग मूव करता है। तो हम क्या मान के चलते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, और एक पोल से निकलेगी दूसरे पोल में क्या करेगी, वो एंटर करेगी। तो हमने परमानेंटली मान लिया कि हमारी फील्ड लाइन कहाँ से निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकलकर कहाँ जा रही है, साउथ पोल की तरफ मूव कर रही है। सो लेट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। So be ready for the next video. This video is helpful for you. Please like my video and comment my videos and subscribe our channel. And please be ready for the next topic and next video. Thank you for watching my video.